I would like to welcome our today's keynote speaker, Mr. Hardeep Singh, senior academician, researcher, author, orator, mentor, motivational speaker, and life coach, having 19 years of experience. He has been honored as a patron member by WAIRCO. His profile has been published in World Researchers 2018 at Oxford, United Kingdom. He has received many prestigious awards such as Republic Day Achievers Award, Young Researcher Award 2017. To have you on board today. The floor is all yours, sir. Good evening, everybody. First of all, I would like to thank Mr. Sudhakar Singh from Dr. Kalam India Foundation and Mr. Tarachand for Skills Certificate for inviting me as a keynote speaker to deliver an expert talk in this international conference on thinking skills for New India and the world. Next, I welcome the entire participants present in this conference. The title of my today's talk is Thinking Skills, a Roadmap for Future Research Orientation. This is a very common topic, thinking, a very common word. Whenever we come across any problem, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी मूव टुवर्ड्स थिंकिंग, हम सोचना शुरू कर देते हैं उसका सॉल्यूशन. इट फोर्सेस अस टू थिंक. कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो हम सोचना शुरू कर देते हैं. थिंकिंग इज आवर डेली एक्टिविटी, बट द पॉइंट कम्स आउट टू बी वी शुड थिंक समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग बेनिफिशियल, समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी एंड द नेशन. Thinking may be positive, thinking may be negative, but we should move towards a positive thinking. We should be a positive thinker. Rather, we should not be negative, be positive, but be COVID negative. Thinking is also called thought. It is a mental process in which beings form psychological associations and models of the world. Thinking is manipulating information as when we form concepts, engage in problem solving, reason and decision making. Ideas come to our mind. जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमारे दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते हैं, तरह तरह के सॉल्यूशंस आते हैं. मैंने आगे भी आपसे बात की, वी शुड बी पॉजिटिव. पॉजिटिव आइडियाज मन में आने चाहिए और उनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस जो है वो हमें सोचने चाहिए, उन पर वर्क आउट करना चाहिए. Thinking skills involve mental processes used in cognitive functions. Such processes include remembering, questioning, forming concepts, planning, reasoning, imagining, solving problems, making decisions and judgments, translating thoughts into the words, and so on. Thinking skills are the habits of intelligent behavior learned through practice. Practice is very important thing. It is very much necessary, very much mandatory in every process to be successful. In 1950s, Benjamin Bloom developed a classification of thinking skills that is still helpful today. It is known as Bloom's taxonomy. He lists 6 types of thinking skills ranked in order of complexity. Knowledge. Thinking skills के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए. एंड कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन. कोई भी काम हमने बढ़िया करना है तो उसकी इवैल्यूएशन जरूर होनी चाहिए. जब इवैल्यूएशन होती है तो हम उसके ड्रॉबैक्स पता लगते हैं, लिमिटेशंस पता लगती हैं, तो वी देन वर्क आउट दैट लिमिटेशंस. उन लिमिटेशंस पर वर्क आउट किया जाता है, जो लैकिंग्स हैं उनको दूर किया जाता है, एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द गुड परफॉर्मेंस, वी मूव टुवर्ड्स द सक्सेस. देन कम्स क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? It is a way of thinking that assesses the worth
and validity of something. It generates something new or different. हमें क्रिएटिव थिंकिंग अपने आप में डिवेल्प करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं? हम बी इनटू फाइंडिंग द राइट आंसर. देयर कैन बी मैनी राइट आंसर्स. एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं, कुछ पॉजिटिव आइडियाज आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, बट वी शुड नॉट थिंक. बहुत से आंसर्स आते हैं, राइट भी हो सकते हैं, बट वी शुड कम टू ए कंक्लूजन. हमें क्रिएटिव थिंकिंग करनी चाहिए और जो आंसर हमें सबसे ठीक लगे, बढ़िया लगे, क्रिएटिव लगे, उस चीज पर वर्क आउट करना चाहिए. डू नॉट ऑलवेज बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तो लॉजिक्स को थोड़ा दूर रखो. जो अपने आंसर्स हैं, राइट आंसर्स हैं, उनकी तरफ देखो और जो आपको ठीक लगता है, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, आपके माइंड के हिसाब से वर्क आउट ऑन दैट थिंग. देन नेक्स्ट इज लेट योरसेल्फ फेल. जब हम कोई काम करते हैं तो जब हम चलना सीखते हैं, किसी चीज की तरफ चल पड़ते हैं, तो हो सकता है हम सक्सेस हो जाए, हो सकता है हम गिर पड़े. सो फेल्यूर्स ऑल्सो लीड टू सक्सेस. अगर हम चलेंगे ही नहीं, उस चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पर वर्कआउट ही नहीं करेंगे, तो वी विल नॉट गेट, ना हमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे ना बैड रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर हम फेल्यूर के बारे में डरते रहेंगे, फेल्यूर से सोचते रहेंगे कि हम फेल हो जाएंगे, दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया को सोचने दो. फेस द क्रिटिसिज्म. दुनिया जो मर्जी सोचे, फेल्यूर को जो मर्जी सोचे, लेट योरसेल्फ फेल. अपने आप को फेल होने दो. आपकी लैकिंग सामने आएगी, लिमिटेशन सामने आएगी, यू विल वर्क आउट ऑन दैट. उसके लिए आप नेक्स्ट इंप्रूव करके बढ़िया आइडियाज निकालोगे एंड यू विल कम टू सक्सेस वन डे. सो डू नॉट बी फियर ऑफ फेल्यूर. फेल्यूर से मत डरो, दुनिया से मत डरो. दुनिया जो है वो बोलती रहती है, उसका काम है कहना, उसने बोली जाना है. यू शुड मूव टुवर्ड्स द सक्सेस. You get better with practice. Practice is very important thing in our life. कोई भी काम करना हो तो हमें जो सक्सेस है उसमें बढ़िया चीज है कब मिलती है? When you do practice and practice, practice and practice, on and on. जब आप बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो, फेल्यूर से नहीं डरते, लैकिंग पर वर्कआउट करते हो, तो you move towards the success. Thinking and research orientation. रिसर्च होती है री प्लस सर्च. एक रिसर्च होती है, एक इनोवेशन होती है. दोनों के लिए थिंकिंग इज वेरी मच मैंडेटरी, वेरी मच इंपॉर्टेंट. थिंकिंग एंड थिंकिंग ओनली. एक बढ़िया रिसर्च के लिए आपके माइंड में आइडियाज जनरेट होने चाहिए. यू शुड बी ए आइडिया जनरेटर. आपको प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए और उसके लिए आइडियाज जनरेटर, आपके माइंड में आइडिया जनरेट होते रहने चाहिए. There should be a creative thinking. आप एक क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए. There should be a critical thinking also for good research, good innovation. अब बात आती है, आप कह रहे होगे कि एक क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में मेन डिफरेंस ये है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेशंस एंड बीइंग ओरिजिनल एंड फ्रेश इन वन्स आइडियाज. ये लिमिटेशन से बियॉन्ड जाओ, अपने माइंड को क्रिएटिव करो, ओरिजिनल आइडियाज जनरेट करो और फ्रेश आइडियाज जनरेट करो. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग. और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? क्रिटिकल थिंकिंग इज मोर इवैल्यूएटिव इन नेचर एंड एनालिसिस ए पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग में एनालिसिस होता है, इवैल्यूएशन होती है. क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होता है कि बियॉन्ड लिमिटेशंस हम सोचते हैं, बियॉन्ड लिमिटेशंस हम आइडियाज जनरेट करते हैं और वो आइडियाज है वो फ्रेश होते हैं. दैट आर नॉट कॉपीड आइडियाज. किसी के आइडियाज नहीं होते, हमारे अपने ब्रेन के आइडियाज होते हैं. सेकेंड थिंग इन रिसर्च इज रियल रिसर्च. आपकी जो रिसर्च है वो रियल होनी चाहिए. इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री. इंडिया बहुत बड़ा देश है. इसमें बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट यहाँ पर पैदा हुए हैं. देयर आर मेनी मोर साइंटिस्ट्स
डॉक्टर्स इन आवर कंट्री, इन मेडिकल फील्ड, इन एवरी फील्ड। तो हमें जरूरत क्या है? जागने की, रियल रिसर्च करने की। और रियल रिसर्च में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ऑनेस्टी। वी शुड बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स, honest to our country, honest to our nation, honest to our passion and honest to the research. और एक और बड़ी चीज रिसर्च में है, देयर शुड बी नो प्लेगरिज्म। हमें किसी चीज की कॉपी नहीं करनी चाहिए, किसी के आइडियाज नहीं कॉपी करने, किसी के रिजल्ट्स नहीं कॉपी करने। डोंट कॉपी एनीथिंग, अवॉइड प्लेगरिज्म, बी ऑनेस्ट एंड डू ओरिजिनल एंड real research in the interest of your society, interest of nation and interest of the world. और लास्ट थिंग है, your research should be society based. आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका जो सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स। आपको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस आउट कर रही है, हम किन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, किन के लिए आइडियाज जनरेट करने हैं, न्यू आइडियाज जनरेट करने हैं। एंड योर रिसर्च शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। आपकी जो रिसर्च है रियल होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए, कॉपीड नहीं होनी चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए। एक रिसर्चर को, एक इंडियन को, ही शुड बी मल्टी टैलेंटेड। आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर में, साइंस में, मेडिसिन में, यू शुड बी ए मल्टी टैलेंटेड। लव योर पैशन। हमें अपने पैशन को लव करना चाहिए। डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। एक मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इंडियन की। ए मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, सेवरल सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंशन देन इन्वेंटर। ही इज ए बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, फिजिसिस्ट, ऑथर एंड एन इन्वेंटर। जो हम रेडियो बेस आज मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, वो उसी एक महान पर्सन की, एक महान इंडियन की देन है। एंड हिज नेम इज डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। वो ही वाज ए गुड थिंकर। वो एक अच्छा थिंकर था। उसने उस समय कितनी दूर तक सोचा कि रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा, कि जिसकी देन आज हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं। दिस आल्सो इज ड्यू टू थिंकिंग ऑफ डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। देन हाई ओरिएंटेड थिंकिंग इन 21st सेंचुरी। कि 21st सेंचुरी में हाई ऑर्डर थिंकिंग की क्यों जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है? एज इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस शेप द ऑक्यूपेशनल आउटलुक ऑफ टुडेज स्टूडेंट्स, schools have begun to embrace the need to install high order thinking to prepare the 21st century workforce. No longer as it is enough for high school graduates simply to know basic facts and skills. To be successful, students must master decision making, prioritizing, strategizing, and collaborating problem solving. Coming to the conclusion of my topic, thinking skills, a roadmap for future research orientation. के next research के लिए हमारे में बढ़िया thinking skills होनी चाहिए. The conclusion comes out to be that we all should become thinkers. हम सभी को एक बढ़िया थिंकर होना चाहिए. Thinker, creative thinker and critical thinker. As already discussed, the high order thinking is required in 21st century to be successful, to be outstanding, to make our nation outstanding, and to make our objective successful. We Indians are very creative, very successful, very skillful, and highly talented. The only need is to be thinkers and multi-talented. So be thinkers, creative thinkers, and then creative thinkers. So thanks for being with me in this talk. Thank ma'am. It is over. Thanks for inviting me for this expert talk on this international conference.